Yes, praise God. As Kiran said, it was a very blessed word. परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे ब्रदर किरण ने कहा कि हमारे लिए एक बहुत अनुग्रह का वचन हमने सुना। Jesus used to use the terms like, look at the lilies of the field, and the grass and all that. I think Sam is following in the footsteps of Jesus. जैसे यीशु मसीह कई बार कहते थे कि जो मैदान के फूल हैं उनको देखो, और ऐसे ही ब्रदर सैम भी उसी उदाहरण का में चल रहे हैं। So we saw the branch which had leaves in one stem, and the other stems was completely dry. And then we also saw another picture of the fruit of that padwal vegetable. Some very weak specimens of that padwal was seen compared to the normal. So we can see how this जैसे हमने वो ब्रदर ने वो उदाहरण दिया, जो डाली है एक हरा भरा था और दूसरा जो उससे संबंध था लेकिन फिर भी वो सूखा पड़ा हुआ था। और ऐसे ही हमने वो परवल का भी उदाहरण देखा, जहाँ हम देखते हैं कि कितना छोटा फल उसमें लगा हुआ था। So we saw clearly how things can become. One can be very fruitful, one can be very weak fruit, one can be without fruit. ऐसे हमने देखा कि कैसे एक पेड़ पे जो डालियां हैं वो कुछ डालियां बहुत फल लाती है, कुछ बिल्कुल भी फल नहीं लाती है। ऐसा संभव है। The word in Colossians chapter 1 verse 10. कुलोसियों का पुस्तक उसका chapter 1 verse 10. एक का पहला अध्याय का 10वां वचन हम पढ़ेंगे। So this is speaking about when we know Christ. When we know Christ, what is the actual way our life should progress? हम यहाँ देखते हैं जब हम परमेश्वर से हमारा अच्छा संबंध है तो हमारा जीवन कैसा दिखेगा। So the Apostle Paul is saying, so that you may walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। And then there's another word in the same chapter, verse 6. Verse 6 says, which has come to you, just as in all the world also, it is constantly bearing fruit and increasing, even as it has been doing in you also since the day you heard and understood the grace of God in truth. हम इसका 6वां वचन भी पढ़ेंगे, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। So the Apostle Paul is talking about the Colossians, and he's thanking God, and he's saying that it is constantly bearing fruit in their life and increasing. और हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस प्रेरित वो कहते हैं कि जो कुलुसियों का जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं और वो फल ला रहे हैं। So it is just like that stem or branch what we saw, which had good leaves, full of good leaves. It is having fruit and it is increasing. और जैसा वो डाली जो पेड़ में बना हुआ है, वैसे ही जो ये विश्वासी थे वो भी प्रभु में वो
उनका रिश्ता बना हुआ था, इसलिए वो फल ला सके। Brothers and sisters, this is the will of God for us, that we bear fruit and that it should increase in our life. और यही प्रभु भी चाहता है हमारे जीवन में, भाइयों और बहनों, कि हमारा जो रिश्ता है प्रभु से पक्का हो और हम फल लाएं और अधिकतम फल लाएं। Then let's read in Hebrews chapter 6. हम इब्रानियों का Hebrews chapter 6, it speaks about how this fruit can be born. इब्रानियों का 6वां अध्याय, उसमें लिखा है कि हम कैसे अधिक फल ला सकते हैं। Hebrews chapter 6 verse 7 and 8. उसका 7वां और 8वां वचन। For the ground that drinks the rain which often falls upon it and brings forth vegetation useful for those whose sake it is also tilled, receives a blessing from God. But if it yields thorns and thistles, it is worthless and close to being cursed, and it ends up being burned. क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। So the rain and the water that comes is the word of God. Our meditation on the word of God, what we hear the word of God, what God speaks to us, that is the rain which falls on us. जो वर्षा जो जैसे भूमि पर गिरता है, वैसे ही हम हमारे जीवन में हम वचन को स्वीकार करते हैं, हम वचन पढ़ने में समय बिताते हैं। So then the vegetation grows, along with it the weeds also grow. कई बार ऐसा होता है जो झाड़ है वो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ में जो जंगली झाड़ है वो भी बढ़ने लगते हैं। But unless we remove the weeds out, then only the vegetation can grow properly. और अगर हम ध्यान देकर वो जो जंगली झाड़ है उसको उखाड़ कर फेंक देंगे, तभी वो जो अच्छा झाड़ है वो ठीक तरह से बड़ा होगा। So verse 8 says, but if it yields thorns and thistles, it is worthless. और 8वां वचन कहता है कि अगर वो कांटे उगाता है तो वो निकम्मा और श्रापित हो जाएगा। So brothers and sisters, our lives can be useful to people or a hindrance to people. हमारा जीवन जो है लोगों के लिए एक आशीष बन सकता है, नहीं तो एक बाधा बन सकता है। So God wants our lives to be useful, that people should be able to eat of the fruit and be blessed, rather than, if it is like thorns and thistles, to whomever we touch, they are hurt, they are discouraged. That should not be so. जैसा ये पौधा हम देखते हैं, अगर उसमें कांटे लगे हुए हैं तो जो भी उसको छुएगा उससे वो चोट लगेगा। वैसे ही अगर हमारे जीवन में भी हम कांटे उगाते हैं तो लोग हमारे साथ संपर्क में आएंगे तो उन्हें चोट पहुंचेगा, उन्हें आशीष नहीं मिलेगा। So we heard about the connection to Jesus, and the flow of his life should come to us, and it can be stopped because of some reasons of some sin or unbelief. और जैसे हमने सुना, जो यीशु मसीह से जो संबंध है उसमें हम बनाए रहें, और वो उसमें एक बाधा आ सकता है, वो जो जीवन हमारे में बहना चाहिए वो नहीं बहेगा अगर हमारे में पाप है। I feel that I have to take care of the small things in life, because it is not the big things, but the small things in the life can choke up the flow. तो कई बार ऐसा होता है, मुझे लगा है कि जो छोटी बातें हैं उन पर मुझे
ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ना कि जो बड़ी बड़ी बातें हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये जो उस बहाव को रोक सकता है। See, the big things you can say is like a big quarrel that we have with somebody. That is a big thing. जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ऐसे है जैसे किसी के साथ हमें मतभेद हो और हम झगड़ा करें। And quarreling is not at all good, and that is bad. And we suppose we quarrel. That's a big thing, a big fall. और अगर हम झगड़ा करेंगे, मतभेद है हमारे मन में, तो और हम पाप में गिर जाते हैं, एक बहुत बड़ी बुरी बात है। But what about the complaining and irritation, a small jealousy here and there, a pride? Those things are the ones which slowly come and choke up the flow of God. लेकिन उन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए जो छोटी छोटी, जैसे हमारे मन में ईर्ष्या हो या कुड़कुड़ाहट हो या छोटी छोटी बातों पर हम अशांत हो जाते हैं, इन सब बातों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। See, it is when we don't take care of these small things that it results into a big fall. अगर हम इन छोटी बातों को पर ध्यान नहीं देंगे तो ये बढ़कर एक बहुत बड़ी बात बन सकती है। So it's very important for us that if the life of Christ is free from all this, jealousy and pride and complaining and all those things. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन में जो ईर्ष्या और घमंड और ऐसी बातों से हमें दूर रहना चाहिए। So as we are sensitive and ask God to cleanse us from that, the flow of Christ comes into us all the time. जैसे हम में वो परमेश्वर का जीवन आएगा और हम इन बातों के लिए जागृत हो जाएंगे, तब प्रभु की जो आत्मा है वो हमारे में कार्य कर पाएगा। I was reminded while Sam was sharing of one verse, like how do I know that the Lord is for me? जब ब्रदर सैम बांट रहे थे वचन से, तो मुझे ये सोच आया कि कैसे मैं समझ सकता हूँ कि प्रभु का how the Lord is for me and He delights कि in me. प्रभु मेरे लिए है, वो मेरे पक्ष में है और मेरे से संतुष्ट है। See, we all can casually say, yes, the Lord is for me, without really having the witness of God. हम कई बार ऐसे बोल सकते हैं, हाँ प्रभु मेरे पक्ष में है, लेकिन प्रभु का जो साक्षी है वो हमारे साथ नहीं है। So Psalm 41 verse 11. हम एक वचन को देखेंगे जो भजन संहिता Psalm 41 verse 11. 41 का 7वां वचन। This is the way that we know that God is for us. हम इस वचन से समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। By this I know that thou art pleased with me, because my enemy does not shout in triumph over me. मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की 41 का 11। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। So David, who wrote the psalm, was saying that, see, in the old covenant, how he was thinking that none of my enemies are victorious over me. That's why God is with me. हम देख सकते हैं कि यहाँ दाऊद जो पुराने वाचा में जीता था, वो कैसे सोचता था कि जब उसके जो शत्रु है वो जब उसके ऊपर जयवंत नहीं होते, तो उन्हें पता होता था कि प्रभु उनसे प्रसन्न है। But for us in the new covenant, it is our enemies are not physical enemies. लेकिन जो हम नया वाचा में हम जीवन जी रहे हैं, तो जो शारीरिक रूप में लोग हैं वो हमारे शत्रु नहीं हैं। Our enemies are the sins which try to overpower us. हमारे जो शत्रु हैं वो
वो पाप हैं जो हमारे शरीर में हमारे ऊपर जयवंत होना चाहते हैं. See the hurtful feelings, the lack of love towards people, or some jealousy or some pride. If these overpower us, then uh, then we can say that God's grace is not upon our life. अगर हमारे हृदय में ईर्ष्या हो और दूसरों के प्रति प्रेम की कमी है, और इन सब बातों से हम जान पाएंगे कि प्रभु हमारे जीवन से खुश नहीं है, क्योंकि हमें इन पापों पर हमें विजय नहीं मिल रहा है. So when these enemies try to overpower us, we look to God for grace, and He gives us grace to overcome them. तो जब ये जो शत्रु हैं हमारे ऊपर वो विजय पाना चाहते हैं, तो हम प्रभु की ओर अपना आंख उठाएंगे और प्रभु हमें उस समय हमें सहायता देगा. And then we know that God is for us, and His life is flowing through us, and He is pleased with us. तब हम जानेंगे कि प्रभु हमारे पक्ष में है और वो हमारे साथ है, और हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे. I want to remember the word that we heard today, and that it will become a fruitful thing in my life. और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ये जो वचन हमने सुना है वो कायम हो जाए और हम अधिक फल लाएं. Amen. Thank God for the word He has given us today. परमेश्वर का धन्यवाद करते जो वचन आज उन्होंने हमें दिया. See, when I was getting up today, this morning, many thoughts were coming to my mind. और आज जब मैं सुबह सोकर उठा तो कई सारे विचार मेरे मन में चल रहे थे. Then suddenly a thought which is overpowering all those thoughts came to me, that only one thing is important. और तब मेरे मन में एक दूसरा विचार आया जो मेरे मन में चलने वाले बाकी विचारों के ऊपर जय पा लिया, और वही एक बात मेरे लिए महत्वपूर्ण थी. Then I found the whole my mind was fully lightened. Only one thing is important, not so many things. And in floods of thoughts into our life, but overall that only one thing is important. और मैंने देखा कि कई सारी चिंताएं और बातें मेरे मन में चल रही थी, लेकिन एक ही जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारी बातें नहीं परंतु एक ही बात महत्वपूर्ण थी और वही मेरे मन में चल रही थी. हमारे मन में काफी सारे विचार आते हैं. That's what we heard today. When we are connected to the Lord Jesus Christ, everything is taken care of. और यही हमने आज वचन में सुना कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो बाकी सारी बातों की चिंताएं हम वो संभालते हैं. So when his life, there nothing should stop his life from flowing into us. और उनके जीवन, परमेश्वर के जीवन को हमारे अंदर बहने से कोई भी बात, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए जो रोक दे उनके जीवन को हमसे, हमारे अंदर बहने से. When his life flows into us, everything is taken care of. The leaf is fruit and everything is natural. लेकिन जब उनका जीवन हमारे अंदर बहेगा तो सारी बातों की चिंताएं अपने आप हो जाएंगी, वो ले लेंगे, देख रेख करेंगे, और पत्ते हरे भरे होंगे, उसमें फल भी रहेगा. So otherwise it will be a hard work. Without the life of Christ flowing into us, everything is a hard work for the whole life. But at the end of life, you will have nothing to show. No, nothing. It will be a life of full hard work but zero output. लेकिन यदि उनका जीवन हमारे अंदर नहीं बहेगा तो हमें बहुत ही कठोर परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ही ज्यादा कठोर परिश्रम मेहनत करने के बावजूद अंत में नतीजा यह आएगा कि हमारे पास कोई भी फल नहीं होगा बताने के लिए, दिखाने के लिए. In contrast to that, when the life flows through us, everything is natural. The leaf comes naturally, the fruit comes naturally. We do nothing. Only one thing important. That's a great mystery of Christian life, which the Satan doesn't want us to see, which is, people who are not serious, their eyes are blinded from seeing this. लेकिन यदि हम इसी के विपरीत यदि देखें कि उनका जीवन यदि हमारे अंदर बहेगा तो बिना किसी मेहनत के किए अपने आप ही जीवन आएगा, और जीवन आने से पत्ते हरे भरे रहेंगे, डालियों के अंदर फल लगेगा और वो फलवंत होंगे. और हम देखते हैं कि इसी जीवन को हम देख ना सके उसके लिए शत्रु कार्य करता है, शैतान रोकने की कोशिश करता है. This comes by believing in Christ and trusting in him fully, as we heard.
और जैसा कि हमने सुना, यह जीवन तब आता है जब हम उसमें विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं, जैसा आज हमने सुना है। So when Jesus was standing in front of the tomb of Lazarus, और हमने देखा कि जब यीशु मसीह लाजर मर गया था, उसकी कब्र के बाहर खड़े थे, he ordered the stone to be removed. उन्होंने आज्ञा दी कि पत्थर को हटाया जाए। So they were scared. How can you remove the stone? It will be it's a stench. It will be a disaster. और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग बोलने लगे कि तुम उस पत्थर को कैसे हटा सकते हो, वहां से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होगी, बहुत ही बदबूदार होगा वो। But if you trust in Jesus and know who is standing there, you will be so happy to remove it because you know the end of the journey has come. You are going to see miracle there. लेकिन यदि आप इस बात को जानेंगे कि यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे और आप इस बात को जानेंगे कि वहां पर कौन व्यक्ति खड़ा है और जो कह रहा है यह बात करने के लिए, तो आप विश्वास के साथ इंतजार करेंगे वहां पर एक चमत्कार होने के लिए, देखने के लिए। Christian life is always like that. It's a big risk we have to take. But when we know who is telling us to take the risk, when we trust in Jesus, you will find miracles. और यही है हमारे मसीह जीवन की बातें। मसीह जीवन में यदि हम अपने जीवन में खतरा मोल लेते हैं और उस व्यक्ति के कहने पर, और हम यदि विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, जो हमसे कह रहा है खतरा मोल लेने, तो उसके परिणाम भी हमें अच्छे मिलते हैं। Just like jumping into a swimming pool, before jumping into the pool will be lot of uncertainties there. What's going to happen? But once you take the risk and jump, then you will enjoy the pleasure of the swimming. और ये वैसे ही जैसे हम तैरना सीखते हैं और तैरने के लिए हम जाते हैं पूल के अंदर, जब हम कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, उसके पहले हम डरते हैं, कांपते हैं, चिंताएं आती है कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यदि हम विश्वास के साथ कूदते हैं, तब हम उस पानी के ऊपर हम तैरना शुरू करते हैं। This is applicable in those who are going to get married, in your married life, when you are looking for a job, when you are going to have a child, or when you are sick, or every point of your life, you will be always facing a big dilemma. We are uncertain about things. और यह हमारे जीवन के हर एक बातों के लिए, क्षेत्रों के लिए, कि यदि आप अपने जीवन में विवाह करने जा रहे हैं, विवाहित जीवन जीने की शुरुआत करने वाले हैं, या आप अपने भविष्य में बच्चों को लेकर सोच रहे हैं, या कोई आपके काम के क्षेत्र में है, कोई भी बात होगी, यह बहुत सारी चिंताओं का विषय है, लेकिन यह सब दूर होगा। But all the uncertainty and fear will go when we trust in Christ and take that step, when we know whom you trust. लेकिन जब हम इस बात को जानेंगे कि हम किस पर भरोसा किए हैं, विश्वास किए हैं, और उन पर भरोसा करके यदि हम विश्वास से इन बातों के लिए कदम उठाएंगे, तब हम सफल होंगे। That's why when the life of Christ flowing means that's what everything is. Like in John 10 it says, He has come to give us life and life in abundance. When that life flows, everything else is taken care of. और यही होता है जब यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन में बहता है, जैसे हम यूहन्ना अध्याय 10 के वचन 10 में पढ़ते हैं कि वह बहुतायत का जीवन हमें देंगे, और उनके जीवन से सारी बातें जो हैं वो अपने आप उनकी देखरेख करेंगे। One verse which always encouraged me is from 1 Samuel 17:48. और एक वचन जो हमेशा अक्सर मुझे उत्साहित करता रहता है, वह पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, which was brother? 17:48. उसका 48 वचन, पहला शमूएल अध्याय 17 उसका 48। So it says about David, a 14-year-old boy, shepherd boy. और यहाँ पर हम दाऊद के विषय में पढ़ते कि 17 साल का जवान लड़का दाऊद यहाँ पर खड़ा है। He is facing giant, one of the trained warriors of that time. और उस समय के सबसे वीर शक्तिशाली बड़े योद्धा से वह जो उसके सामने खड़ा था, वो लड़ने गया। Not only he is trained, he is highly armored and he is highly mighty. और वह जो उसका शत्रु है, वह बहुत ही पूरी तरह से शूरवीर है, सक्षम है और हथियारों से भरा हुआ है। When he faced that man Goliath, what did David do? और जब इस दाऊद जो बच्चा था, लड़का था, उसने जब इस गोलियत का सामना किया, उसने क्या किया? Anybody can run away out of fear. कोई और होता या कोई भी होता तो वह वहां से तुरंत भाग जाता। You can talk a lot of things before you face Goliath, but when you actually see Goliath, you will run away.
हम गोलियत का सामना करने से पहले कई सारी बातें उसके विषय में कह सकते हैं साहस भरी, लेकिन जैसे हम गोलियत का सामना करने आएंगे हम तुरंत ही वहां से भाग जाएंगे। Okay, that what did David do? That is in 1 Samuel 17:14. As the Philistine moved closer to him, what did David do? David ran quickly towards the battle line to meet him. और हम उसके 48वें वचन में पढ़ते हैं, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। David, when the Goliath walked towards him, David ran towards the Goliath to face him. What a courage it is. और यहाँ पर हम दाऊद का धाड़स देखते हैं, उसकी हिम्मत देखते हैं कि जो गोलियत है वो दाऊद की ओर लड़ने के लिए चलकर आ रहा है, और यहाँ पर दाऊद उससे लड़ने के लिए दौड़कर जा रहा है। This is the power of trusting in God. This is the power of life of Christ flowing into our life. और यही है वह सामर्थ जो परमेश्वर पर विश्वास करने से आती है, यही वह सामर्थ है जो मसीह का जीवन हमारे जीवन में बहने से होता है। That's the reason why this story is there in the Bible, for us और to यही be encouraged. और यही कारण है कि हमें उत्साहित करने के लिए ये सारी जो घटनाएं हैं कहानी के तौर पर इस पुस्तक में हमारे लिए लिखी गई। So tomorrow temptations will come in front of us like Goliath. Fear will come in front of us like Goliath. What should we do? Should we run away or face it? और वैसे ही हमारे जीवन में जब कभी गोलियत के समान कोई परेशानी या कोई प्रलोभन पाप का आएगा तो हम क्या करेंगे? क्या हम वहां से भाग जाएंगे या हम डट कर उसका सामना करेंगे? If you face Goliath, you will never see Goliath again. But if you run away from him, he will keep on coming up. यदि आप गोलियत का सामना करेंगे और उस पर जय पाएंगे तो फिर कभी आप अपने जीवन में गोलियत को नहीं देखेंगे, लेकिन यदि आप उसका सामना किए बिना वहां से भाग जाएंगे तो वह अगली बार फिर से वो आपके सामने आकर खड़ा होगा। See, this Goliath was coming up for 40 days, challenging the Israelites because none of them were ready to face the Goliath. When one man decided to face him, Goliath vanished from the scene. He died. और हम देखते हैं कि 40 दिनों तक गोलियत आकर इजराइल को ललकारता रहा युद्ध के लिए, और 40 दिनों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आकर उसका सामना करे, लेकिन जब दाऊद निकलकर उसका सामना करता है उसके बाद वो खत्म हो जाता है, वहां पर वह हार जाता है। So brothers and sisters, what is the decision today? What are you? Do you trust in this Jesus? तो भाई बहनों, आज आपका निर्णय क्या है? क्या आप आज इस यीशु मसीह में विश्वास करेंगे? As Brother Sam said, do you trust in this Jesus who said, I am the resurrection and power? और जैसा कि भाई सैम से हमने सुना कि आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे जिसने यह कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। Are you afraid of stench coming from a dead body? I am the one who is going to resurrect this man. क्या आप चिंता में और भय खा रहे हैं उस बदबू जो आ रही है उस मरे हुए शरीर में से, उसका डर है आपको? When you are facing a problem, the name of God will become the solution to that problem. That's what you can see that. When Jesus was standing in front of the tomb of Lazarus, his name became resurrection and power. और हम देखते हैं कि जब कभी हमारे सामने समस्या या चिंताएं रहती है, परमेश्वर का नाम ही एकमात्र वहां पर उस विषय के लिए समाधान होता है। जैसे मरे हुए लाजर की उस कब्र के पास वहां जीवन के लिए एक ही नाम था, वह यीशु मसीह था, इसलिए उनका नाम पुनरुत्थान जीवन पड़ा। When you are in need of something, the name of Jesus will become the provider, Jehovah Jireh. और जब कभी आप जरूरत में होंगे, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी, तो वहां पर परमेश्वर का नाम आपके लिए उपस्थित है कि यहोवा यीरे। When you are in sickness, he will become Jehovah Rapha. He is the one who heals you. और जब आपको चंगाई की जरूरत होगी तो वह यहोवा राफा है जो आपको चंगाई देगा। So when you face a problem, God will become the solution to that problem. और जब आप समस्याओं का सामना करेंगे, परमेश्वर स्वयं आपकी उन समस्याओं के लिए खुद समाधान बनेंगे। That is why when David saw Goliath, God become his power to face Goliath. So he ran towards Goliath, and the Goliath vanished from the scene forever. और हम देखते हैं कि गोलियत का सामना करने के लिए दाऊद दौड़कर निकलता है, क्योंकि परमेश्वर खुद उसकी सामर्थ्य बन गया था, और वह दौड़कर चला गया, उसका सामना किया और गोलियत को खत्म कर दिया। Brothers and sisters, today's pandemic is putting many people in problems and fears, but it is giving the children of God tremendous strength to face the world. और भाई और बहनों, हम अपने चारों ओर आज देखते हैं कि कोरोना से कई सारे लोग डर में जी रहे हैं, बहुत ही भय और चिंता में हैं और समस्या संकट में हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वह परमेश्वर की ओर इस परिस्थिति में
बलवंत हो रहे हैं। So let us trust in this God. Forget about the 100 things going through your mind. Only one thing is important. That is Christ Jesus. Attach to Him. Have fellowship with Him. Let His life flow through Him. That takes care of everything. आपके आपके मन में हो सकता है 100 बातों के अलग अलग विचार चल रहे हो, लेकिन केवल एक ही बात आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह केवल यीशु मसीह है। उन्हीं के साथ में आप जुड़ जाएं और किसी बात की चिंता न करें, सारी बातें वह देखेंगे। Amen. आमीन। जो कुछ भी हमने सुना उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Whatever we heard, I want to thank God for that. ये फेलोशिप परमेश्वर के साथ रहना ये मसीह जीवन की नींव है। And the fellowship which we have with God is the foundation of a Christian life. मैं 2010 में यीशु को मैंने जाना। I came to know Lord in 2010. 2010 से लेके 2017 तक मैं यीशु के प्रचार किया, लोगों को यीशु के बारे में बताया, पर मेरा यीशु के साथ कोई फेलोशिप ऐसा कुछ था नहीं। From 2010 till 2017, I used to preach about Jesus to people and did ministry, but I was not having any fellowship with the Lord. मैं लोगों को YouTube पे सुनता था और बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करता था और लोगों के चमत्कार और छुटकारा जो यीशु के नाम से करते थे, मैं सोचता था यही एक मसीह जीवन है, तो उसमें फेलोशिप की बात ही नहीं आ रही थी। So I used to listen to so many, I used to attend so many meetings and I used to see the miracles happening and people getting healed, and I used to think that this is the Christian life and it is nothing about fellowship with the Lord. और मैं ज्यादा करके ये सब चीजों के पीछे देखने लगा कि लोगों को चंगाई, छुटकारा और प्रभु का संदेश सुनाओ, और यही एक क्रिश्चियन मतलब मसीह जीवन है। And I used to think that all this is Christian life, that getting healed and working of miracles, and I used to think that all this is Christian life. क्योंकि मैंने यही सुना और मैं यही सबको बताता भी था। And because I had heard only these things and I used to tell people about these things only. लेकिन 2017 में मैंने जब मैथ्यू ब्रदर को पहली बार विपुल के घर पे ये कहते सुना कि वी हैव टू हैव अ फेलोशिप विद आवर फादर आवर लॉर्ड हु इज इन लाइट, जो हमारे पिता और परमेश्वर के साथ एक ऐसा संगति रखना है जो उजाले में रहता है। And when in 2017 I heard Brother Matthew at Brother Vipul's place saying that we should have fellowship with the Father and a Lord, and we should who is in light. मैंने कभी ये ऐसा सुसमाचार पहले कभी नहीं सुना था। And this gospel I had never heard before. फर्स्ट टाइम मैंने सुना और मैं घर पे आके भी सोच में पड़ गया कि ये क्या सुना मैंने आज। And first time I had heard those words, and after coming back home I was thinking that what I heard today. और मैं फिर उसके चीज पर मनन करने लगा, मेडिटेट करने लगा, और मैंने देखा कि मेरा जीवन मतलब क्या है अभी तक। And that time I started meditating on those words, and then I started to examine my life, what was till that time. तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जो ब्रदर ने प्रचार किया ऐसा एक जीवन में मुझे भी आना है, अनुभव करना है। And I prayed to the Lord that Lord, what Brother Matthew had just preached, I want to have such a life. और उसके बाद परमेश्वर ने सचमुच मेरे जीवन में कार्य किया, अब उसके साथ मैं एक फेलोशिप रख सकता हूँ। And after that God really worked in my life, and now I can live in fellowship with the Lord. तो सबसे बड़ा प्रश्न है मैं प्रभु के फेलोशिप में हूँ कैसे पता चलता है? And a very big question is that how can I know that I am in fellowship with the Lord? हम प्रचार कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं यीशु के बारे में, टीच कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के फेलोशिप में सच में है कैसे पता चलता है? We can preach to people and we can do so many miracles and good works and so many things, but how we'll know that we are in fellowship with the Lord? हम देख सकते हैं यूहन्ना अध्याय 15 में, वहां पर जैसे सैम ब्रदर ने बताया उसके 6 वचन में लिखा है, यदि कोई मुझ में न बना रहे तो वो उस डाली के समान है जो फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। And as Brother Sam was sharing, it is mentioned in John chapter 15 that if a person does not remain in me, he is like a branch who will dry up.
और दूसरे वचन में लिखा है जो मुझ में है और नहीं फलता वो भी काट के आग में डाला जाएगा. And in second verse it is mentioned, and the person who is in me and does not flourish, he'll also be thrown into fire. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यीशु में नहीं बना रहता है वो भी आग में डाला जाएगा, और जो यीशु में बना रहता है और फलवंत नहीं होता वो भी आग में डाला जाएगा. And here we see that the person who does not remain in Christ will also be thrown into fire, and the person who is in Christ but does not flourish will also be thrown into fire. तो ये प्रश्न ये है कि हम यीशु में बने हमें कैसे पता चलता है? Now the question is that how we'll know that we remain in Christ. उसके 5वें वचन में हम पढ़ सकते हैं जो डाली मुझ में बनी रहती है और मैं उसमें वह बहुत फल लेकर आता है. So we can read that verse from John chapter 15 verse 5, that the branch who remains in me will bear much fruit. हमारे जीवन में फल आएगा. यीशु ने कहा तुम फलों से उनको पहचानोगे. Our life will bear fruits, and Jesus has told that through their fruits you will know them. तो ये बहुत जरूरी है यीशु का स्वभाव हमारे अंदर से प्रकट होना और बाहर आना, और हम वो जीवन को अपने अंदर देख सकेंगे. So it is very important that nature should display from our lives, and that we'll see in our lives. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हमारे जीवन से फल आ रहा है, यीशु का स्वभाव आ रहा है, प्रेम दया, जैसे हम गलाती अध्याय 5 में पढ़ सकते हैं 20 वचन में कि उसकी फल जो आत्मा का फल है, प्रेम दया भलाई संयम, जो परमेश्वर का स्वभाव है वो अगर हमारे जीवन से दिखता है तो वी कैन से कि हाँ हम प्रभु में बने और प्रभु हम में बना है. So we can read about the fruits of the Spirit in Galatians chapter 5, and if all those fruits like love, joy, peace, patience, all these fruits are bearing in our lives, then we can say that the nature of Christ is in us. और दूसरा एक वचन जो पहला यूहन्ना में जो मैंने सीखा था मैथ्यू ब्रदर से, वो ये यहाँ पर है. पहला यूहन्ना अध्याय 1:6 में वहां पर लिखा यदि हम कहते हैं हमारा सहभागी उसके साथ है और हम ज्योति में नहीं चलते हैं तो वी आर अ लायर. And one more thing that I heard from Brother Matthew, and that was encouraged me, was from verse from 1 John chapter 1 verse 6, that 1 minute, brother, should I read that verse? हाँ ठीक है चलेगा. If we say that we have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. तो अगर हम कहते हैं प्रभु के साथ संगति और ज्योति में नहीं चलते हैं, मतलब परमेश्वर जो हमको रिवील करता है हमारे जीवन के बारे में वो हम मान के बदलते नहीं है और वैसा ही चलते रहते, तो वी आर अ लायर. So yeah, so if we say that we have fellowship with the Lord but we still walk in darkness, and whatever God is showing we don't obey those things, then we are a liar. लेकिन 7वें वचन में लिखा है जो ज्योति को मानता है और उसके अनुसरण करता है और उसके पीछे चलता है वो लाइट में और सहभागी प्रभु के साथ रखता है. आमीन. And it is mentioned in verse 7 that the one who walks in light as he himself is the light, then he can say that he is in fellowship with the Lord and fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin.